In this video, we will see how to create a database and table in OpenOffice base application. To do so, first we need to open OpenOffice base application. We click on Start button, All Program, and we click on OpenOffice 4.1.7, and this is your OpenOffice base application. We click on this. Here we need to give some information like what do you want to do, create a new database. Okay, I want to create a new database in this application. Then we will select this option. This is already selected. Then we click on next. Here do you want the wizard to register the database in OpenOffice? Yes. यहाँ पे हम database, I am creating a database and I will register this database in OpenOffice. So first we click on this option and this is also already selected. And second thing, after the database file has been saved, what do you want to do? Means when this file will be saved, after that which action will you perform? So I perform which action? Open the database for editing. Clear? So it's also checked. So now we click on finish button to create a database. When we click on finish button, then it will ask to save the database. This is your save as dialog box. Here we specify the location. Suppose I want to save this database on desktop, then we will select your desktop. These are the different locations you can select here as per your need. Then here we need to type the file name. Suppose I want to give student database. Okay, so student database, this is your name of database, and what is the extension of your database that you are creating in your OpenOffice base application. And then extension of the base or extension of your database is .odb, and the full form of this OpenOffice database. Now we click on save. This particular database is saved on desktop. ठीक है, अब ये हमारे सामने ओपन हुआ. This is your database window, and these are database objects, tables, queries, form, reports, and this area is called object window. This is your status bar, and this is your menu bar. This is your toolbar, and here when you select any database object, then related tasks is appear under task section. Right now we will see how can we create a table in database. So in student database, I can create table by using two ways. First, either with the help of design view or with the help of wizard. First we see to create a table in design view. So first we click on this option. This is your window where you can create a table for your database. Here there are two fields that we need to provide some information. First is field name and second field type. Field name क्या है? It refers the column name for your table. जो आपकी टेबल है उसके लिए आप जो कॉलम बनाना चाह रहे हो, कॉलम का नेम जो रखना चाह रहे हो, दैट इज योर फील्ड नेम. वी नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यू इन फील्ड नेम फॉर योर कॉलम. तो सपोज हमें एक टेबल तैयार करनी है, उसमें हमें फर्स्ट रखना है सीरियल नंबर. ठीक है, तो फील्ड नेम लिखते समय यदि आपके सीरियल नेम में मोर देन वन वर्ड्स आ रहे हैं तो उन दोनों वर्ड्स को आप ज्वाइन करोगे अंडरस्कोर से.
सीरियल नंबर। नेक्स्ट आपका है फील्ड टाइप। फील्ड टाइप में क्या होता है, ये आपका डेटा का टाइप है कि इस कॉलम में सीरियल नंबर में किस टाइप का डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा यू विल एंटर इन दिस कॉलम। फॉर सीरियल नंबर विच टाइप ऑफ डेटा यू विल एंटर, किस टाइप का डेटा ये इसमें स्टोर होगा, वो होता है आपका डेटा टाइप। ठीक है, जिसमें हमें फील्ड टाइप में स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ पे आपकी एक लिस्ट है आपके डेटा टाइप की। ठीक है, यहाँ से हमें एक अप्रोप्रिएट डेटा टाइप को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, और ये यही डेटा टाइप बताता है कि आप किस टाइप के डेटा को आप अपने उस कॉलम में, किस टाइप के डेटा को अपने कॉलम में ऐड कर पाएंगे। तो जो टाइप आप यहाँ डिक्लेयर करोगे उसी टाइप का डेटा आप इस सीरियल नंबर में ऐड करोगे। तो सीरियल नंबर जनरली आपका कैसा होना चाहिए, तो होता है न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप जो आपका होता है वो होता है इंटीजर, जो है आपका ये स्मॉल इंटीजर, छोटी वैल्यू यदि है, फ्लोट, रियल, डबल, नंबर, दीज आर न्यूमेरिक डेटा टाइप। जब भी न्यूमेरिक डेटा टाइप आपको यूज करना होगा, यू कैन यूज वन ऑफ दीज डेटा टाइप। इन सब न्यूमेरिक डेटा टाइप में कोई आप एक यूज कर सकते हो। तो जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो इंटीजर यूज करते हैं। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू यदि लेनी होती है उस केस में हम लोग यूज कर लेते हैं डबल को, फिर डेसिमल को यूज कर लेते हैं उसके बाद रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर को, हम उसके डेटा टाइप को लेते हैं इंटीजर। इंटीजर टाइप की वैल्यू की हम इसमें स्टोर करेंगे, और इस फील्ड से रिलेटेड जो आप प्रॉपर्टीज यदि आप कोई सेट करना चाह रहे हो, तो आप इस सेक्शन में आओ, प्रॉपर्टी सेक्शन में आओ, फील्ड प्रॉपर्टी सेक्शन में। यहाँ से आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू क्या है, ऑटो वैल्यू यदि आपको इसको एस कर देते हो तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऑटोमेटिक वैल्यू एक जनरेट करेगा सिस्टम खुद से, और वो क्या करेगा इस सीरियल नंबर में असाइन करता जाएगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, वो इंक्रीमेंटेड फॉर्म में होगी। जैसे पहले 1 को असाइन किया, तो 1 के बाद एक इंक्रीमेंट करेगा, तो अगला रिकॉर्ड के लिए एक अगला एक का इंक्रीमेंट कर देगा, तो अगले रिकॉर्ड के लिए 2 होगा, अगले रिकॉर्ड के लिए 3 होगा, फिर नेक्स्ट के लिए 4, नेक्स्ट के लिए 5। इस तरह से वो एक एक का इंक्रीमेंट करके करके वो एक ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करता रहेगा, और जो सभी रिकॉर्ड के लिए यूनिक होगा। ये किसी दो रिकॉर्ड का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसको नो रखते हैं। सेकेंड फील्ड है आपकी एंट्री रिक्वायर्ड। जब भी आपको कोई एंट्री मैंडेटरी हो, बिना इसके आपको कोई जो भी यूजर है जो फॉर्म फिलअप कर रहा है, कभी कभी आप देखते हो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है तो उसमें फील्ड के राइट साइड पे एस्ट्रिक का या लेफ्ट साइड में एस्ट्रिक का साइन लगा होता है रेड कलर से, तो वो बोला जाता है कि दिस इज मैंडेटरी फील्ड, मीन्स इसमें आपको वैल्यू एंटर ही एंटर करना है। तो उस तरह से आप रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हो, एंट्री रिक्वायर्ड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे यस कर दो, विदाउट इसके वो आगे ना बढ़े। ठीक है, तो आप इसको एस नो कर सकते, एस करोगे तो वो रिक्वायर हो जाएगी, नो करोगे तो वो इसमें वैल्यू नल वैल्यू ले सकता है, रिक्वायर कर दोगे तो वो नल वैल्यू नहीं ले सकता, मीन्स वो खाली नहीं छोड़ा जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू इंटर होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम बनाते हैं, और ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये आप ऑप्शनल होता है, ये आप इंटर करो या ना करो। नेक्स्ट आपका आता है रोल नंबर। रोल नंबर लेते हैं, रोल नंबर भी हमारा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का ही ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट नेम, तो हम उसको बनाते हैं एसटीडी नेम से। नेम हमारा किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा। तो देखो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक जो टाइप के जो डेटा होते हैं वो आपका होता है टेक्स्ट वैर कैर, आपका होता है टेक्स्ट फिक्स कैर, और नेक्स्ट होता है आपका लॉन्ग करके होता है मेमो जिसे हम बोलते हैं, ये है मेमो, लॉन्ग करेक्ट, लॉन्ग वैर कैर। ठीक, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है। इसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू भी रख सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिक डेटा टाइप में अब जो हम मैंने आपको पिछले बताया न्यूमेरिक डेटा टाइप, उसमें एक आता है बूलियन, इसे भी आप याद रखिएगा। इसमें
बूलियन वैल्यू भी आती है जिसमें एस या नो, ट्रू या फॉल्स टाइप का डेटा आता है, ठीक है, बूलियन वैल्यू। और ये बिग आई एन टी, टेनी आई एन टी, ये सभी आप, ये भी न्यूमेरिक डेटा टाइप के ही पार्ट है। ठीक? तो हमें एस टी डी नेम, ये किस टाइप का होगा, नेम है नेम है, तो इसको हम लोग या तो आप इसको मेमो सेट कर सकते हैं, ये भी अल्फान्यूमेरिक टाइप का होता है, या टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, या आपका लॉन्ग वैरकर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मेमो को, लॉन्ग वैरकर को ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लास एसटीडी क्लास, ठीक, एसटीडी क्लास यहाँ पे आ गया। एसटीडी क्लास ये भी आपका अल्फा न्यूमेरिक टाइप का होगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी एंटर करते हैं, और जब हम रोमन नंबर में डालते हैं तो वो हमारा अल्फाबेटिकल वैल्यू हो जाती है, तो इसको हम टेक्स्ट टाइप में छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा वो किस टाइप का होगा, वो भी हमारा मेमो टाइप का होगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर को यदि हम नंबर टाइप दे देंगे या इंटीजर दे देंगे, तो ये ऐसे नंबर होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं, जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी और ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन मोबाइल नंबर पे हमें कोई ऐसी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना होता, इसलिए हम इसको ये हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टाइप का देंगे, टेक्स्ट टाइप का डेटा, ठीक है। तो उसमें हम इसको दे देंगे मेमो। नेक्स्ट आपका है, अब इसमें से आपको आता है एक फील्ड को आप प्राइमरी की बनाते हो, ठीक है, जो आपके टेबल में वो फील्ड की वैल्यू यूनिक रहती है, वो आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है आपके टेबल में, ठीक है। तो वो हम ले लेते हैं रोल नंबर को, रोल नंबर को हम क्या करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की करने के लिए आप पॉइंटर को यहाँ प्लेस करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आइए, प्राइमरी की को चेक कर दीजिए। ये एक यहाँ पे की का साइन बन गया, ये आपका हो गया प्राइमरी की, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, रिस्ट्रिक्शन यदि आपको कोई लगाना है तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो इसको छोड़ के रखिए, आप इसको सेव करिए टेबल को। तो टेबल यहाँ पे आप इससे नेम यहाँ पे देना होता है, टेबल नेम दे दीजिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एसटीडी टेबल, इसको ओके कर लेते हैं। ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई है, अब इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक। अब ये देखिए टेबल ऑब्जेक्ट पे क्लिक सेलेक्टेड है, ये यहाँ पे देखिए टेबल सेक्शन में ये आपका टेबल दिख रहा है, ये आपका क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं विजार्ड के थ्रू कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको टेबल क्रिएट करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपसे इंफॉर्मेशन ये आस्क करेगा, आप यहाँ इंफॉर्मेशन दोगे और वो प्रोसेस को कंप्लीट करता जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी, पर्सनल कैटेगरी, तो हम पर्सनल टाइप की कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे किस टाइप का टेबल हमें बनाना है, तो हमें एक एड्रेस टाइप का टेबल हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी पड़ी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, यहाँ पे हम एड्रेस टाइप का एक टेबल लेते हैं, और देखिए ये इसके प्री डिफाइंड फील्ड्स हैं, ठीक है। अब इस इन फील्ड में से जो भी फील्ड आपको लेना है, जिस फील्ड का को लेकर के आप कॉलम बनाना चाह रहे हो, आप यहाँ से उस फील्ड को क्लिक सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही सेलेक्ट करके यहाँ इस बॉक्स में ले आओगे, तो वो आपके टेबल में कॉलम वो क्रिएट होगी उसी नेम से। तो यहाँ पे एड्रेस में आ गए, पहले हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं, देन हम लास्ट नेम ले लेते हैं, सेलेक्ट करिए और इस एरो को क्लिक करके ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट हम उसका लेंगे कंट्री, सिटी अगर हो तो सिटी ले लें, सिटी नहीं कंट्री ले लेते हैं, ये सिटी ले लेते हैं। देन हम ले लेते हैं उसका बर्थ डेट। इस तरह से जितने भी आपको जो भी इसमें से आपको चाहिए वो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने इतने कॉलम्स को ये हम ले लिए हैं, हॉबीज लेना है, हॉबीज भी ले ली है, ठीक। यदि आप फील्ड्स को ऐड कर लिए, अब यहाँ से आपको कुछ रिमूव करना पड़ जाए कि नहीं, हम यहाँ से कुछ फील्ड्स चाहते हैं हट जाए, तो आप उसको सेलेक्ट करिए और इस
ऑप्शन को आप क्लिक करिए इस साइन पे, तो वो आपका यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, ये आपके फील्ड नेम सेलेक्ट हो गए हैं। अब ये आपके क्या हो गए, कॉलम हो गया। फर्स्ट नेम का एक कॉलम बनेगा, सेकंड लास्ट नेम से एक कॉलम बनेगा, सिटी नेम से एक बनेगा, बर्थ डेट से एक बनेगा। इट मींस आपके टेबल में 4 कॉलम क्रिएट होंगे। ठीक, नाउ वी क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए सेट फील्ड टाइप, जो आप डिजाइन व्यू में ओपन करते थे तो वहां पे फील्ड टाइप हमें देना होता था, वही वर्क आपको यहाँ देना है। फर्स्ट नेम हमने कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए फील्ड टाइप में। अब फर्स्ट नेम यहाँ देखिए, ये आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है जो फील्ड का टाइप होता था। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप क्या दोगे, हम दे दें टेक्स्ट करेक्टर टाइप का। एंट्री रिक्वायर है या नहीं, रिक्वायर हो तो आप यस कर दीजिए, मैंडेटरी फील्ड हो तो यस करिए, अदरवाइज नो रखिए। ठीक है, लेंथ कितनी होगी, 50 कैरेक्टर्स का होगा तो 50 कैरेक्टर्स आप यहाँ दे सकते हैं, या कम करना हो तो आप कम भी कर सकते हो। यहाँ पे सपोज हम 30 कैरेक्टर्स दे देते हैं। नेक्स्ट लास्ट नेम, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को आप सेलेक्ट करिए और उससे रिलेटेड आप यहाँ पे फील्ड टाइप को डिफाइन करिए। उसके बाद यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन को ऐड करिए, ये आपको सभी पे करना है। सिटी पे हम कर लेते हैं, सिटी पे ही टेक्स्ट वर्क कर देते हैं। बर्थ डेट में क्या करोगे, आप फील्ड का टाइप डेट दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा हमें एंटर करना होता है। जब इस तरह से सभी फील्ड्स के इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आप सेट कर लेते हो, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको आपको पता है कि टेबल में प्राइमरी की भी देना होता है, तो प्राइमरी की आप बनाओ। प्राइमरी की आप किसको बना रहे हो, तो इस टेबल में हम प्राइमरी की किसको बनाएं, हम प्राइमरी की बना लेते हैं बर्थ डेट को। ठीक है, या अब यहाँ भी ये कर रहा है क्रिएट अ प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली ये ऐड कराना हो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको खुद से यदि आपको क्रिएट करना है, प्राइमरी की डिफाइन करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करो और बर्थ डेट को सेलेक्ट करो और ऐड कर लो प्राइमरी की के फील्ड में। यहाँ से आप एक से अधिक प्राइमरी की को सेलेक्ट करके बना सकते हो। ठीक है, तो हमारा बर्थ डेट जो होगा वो प्राइमरी की फील्ड इसको बना लिया प्राइमरी की। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमें टेबल का नेम एंटर करना होता है। टेबल का नेम हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम एसटीडी टेबल 1 के नाम से टेबल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली। डेटा को क्या आप इंसर्ट करना चाह रहे हो क्रिएट टेबल होने, टेबल को क्रिएट करने के बाद, या मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, या फिर आप अपने टेबल को डिजाइन मोड में ओपन करना चाह रहे हो, कुछ आपको चेंजेस करना चाह रहे हो, या क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल, या इस टेबल पे बेस आप कोई फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हो। तो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डेटा ही इमीडिएटली एंटर करें, अभी हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ये एक टेबल क्रिएट हुई और फिर उसको आपको ओपन कर दिया डेटा को एंटर करने के लिए। देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, बर्थ डेट, ये आपकी टेबल ओपन हो गई है। ठीक है, अभी ये डायरेक्ट ओपन कर दिया है डेटा एंट्री के लिए। ठीक, लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कैसे आप लोग इसको ओपन करोगे अपने टेबल ऑब्जेक्ट में जाकर। तो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 टेबल क्रिएट हमने किया, यूज विजार्ड के थ्रू हमने एसटीडी टेबल 1 को क्रिएट किया है, और डिजाइन व्यू के थ्रू हम क्रिएट किए हुए हैं एसटीडी टेबल को। ठीक है, इस तरह से हम लोग डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करते हैं। अब इस टेबल में यदि आपको रिकॉर्ड एंट्री करनी है, ठीक है, तो डबल क्लिक ऑन द टेबल, डबल क्लिक करिए, ये आपके देखिए ये विंडो ओपन हुई, यहाँ पे आप रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हो। ठीक है, सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर हमने दिया 1, रोल नंबर में आ गए, यहाँ पे हमने दिया 1, एसटीडी नेम देना है, हमने दे दिया रमेश, क्लास देना है 10th क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, नंबर दे दिया, एंटर की करिए, नेक्स्ट आइए, सीरियल नंबर हुआ 2, रोल नंबर हुआ 2, यहाँ पे हमने दिया आकाश, क्लास दिया 10, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह से दिया। इस तरह से आप रिकॉर्ड को ऐड करते जाएंगे तो ये सेव होता जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड को आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप इसको इस तरह से प्लेस योर पॉइंटर हियर, द रिकॉर्ड विल बी सेलेक्टेड एंड क्लिक ऑन एडिट एंड हियर सेलेक्ट डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, डू यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड डेटा, यस, द रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड। इस तरह से आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। किसी भी रिकॉर्ड को चेंज करना हो तो यहाँ उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे सिंपल आप
रिकॉर्ड चेंज कर दीजिए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेबल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल को, उसके रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक, रिकॉर्ड को देखना हो डबल क्लिक करिए, अगेन ये आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप इस तरह से न्यू रिकॉर्ड को ऐड करके, इस तरह से आप कर्सर को ले जा करके आप रिकॉर्ड ऐड करते जाइए, वो सेव होता जाएगा। तो ये तो रहा आपका टेबल क्रिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ कैन वी क्रिएट क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल।